قدیم بغداد کی فصیلوں کے سائے میں، جہاں دریائے دجلہ کی لہریں شام کے سنہری اجالے میں یوں چمکتی تھیں جیسے وقت کے اوراق پر بکھرے ہوئے خواب، ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ وہ نہ تو کسی قبیلے کی شہرت رکھتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس دنیا کی کوئی جمع پونجی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجب سکون کی روشنی تھی جو دیکھنے والوں کے دلوں میں ہلکی سی لرزش پیدا کر دیتی تھی۔ سلیم روزانہ شہر کے بڑے بازار کے کنارے جامع مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتا۔ اس کے سامنے ایک پرانا سا کاسا رکھا ہوتا جس میں کبھی چند درہم کھنک اٹھتے اور کبھی پورا دن خاموشی کی گرد میں ڈوبا رہتا، مگر اس کی آنکھوں میں کبھی شکو نہ آتا۔ وہ ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں کہتا، اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی دنیا کی دولت کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بس مجھے اتنا عطا کر کہ میرا دل تیرے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اس کی زندگی ایک سیدھی لکیر کی مانند تھی جس میں نہ کوئی غیر معمولی واقعہ تھا اور نہ کوئی بڑی خواہش، مگر ایک دن بغداد کے بازار میں ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے اس کی تقدیر کے دریچے پر ایک نیا سوال لکھ دیا۔ اس دن سورج کچھ زیادہ ہی تیز تھا اور بازار میں دور دراز سے آئے ہوئے تاجروں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ دمشق سے ریشمی کپڑے، بصرہ سے کھجوریں اور یمن سے خوشبوئیں لائی گئی تھیں۔ انہی تاجروں میں ایک مالدار سوداگر بھی تھا جو اپنے قافلے کے ساتھ آیا تھا اور جس کے خیمے میں قیمتی اشیاء کا انبار تھا۔ لوگوں کی بھیڑ اس کے گرد ایسے جمع تھی جیسے شہد پر مکھیاں۔ اسی ہجوم میں کسی بے احتیاطی شاید تقدیر کے کسی مخفی اشارے کے تحت ایک وزنی تھیلی اس کے سامان سے پھسل کر زمین پر گر گئی، مگر شور و غوغا میں کسی کی نظر نہ پڑی۔ فقیر سلیم، جو حسب معمول مسجد کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا، اس کی نگاہ اس تھیلی پر جا ٹھہری۔ وہ آہستہ سے اٹھا، ارد گرد دیکھا، کسی کی توجہ نہ تھی، اور پھر تھیلی اٹھا کر سنسان گوشے میں چلا گیا۔ وہ اس کے وزن سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ معمولی چیز نہیں۔ سلیم نے تھیلی کھولی تو اندر ایک چمکتی ہوئی سونے کی اینٹ رکھی تھی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی تھی۔ وہ اینٹ ایسی تھی جیسے سورج کا ٹکڑا زمین پر اتر آیا ہو۔ سلیم کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے یکایک ایک نئی دنیا کا منظر ابھرا، ایک چھوٹا سا گھر، صاف ستھرا لباس، پیٹ بھر کر کھانا اور وہ سب سہولتیں جن کا اس نے کبھی خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک آواز کہتی، یہ موقع شاید زندگی میں دوبارہ نہ ملے، تو نے ساری عمر تنگی میں گزاری ہے، اب اگر اللہ نے یہ نعمت تیرے قدموں میں ڈال دی ہے تو اسے قبول کر لے۔ مگر دوسری آواز جو اس کے دل کے نہا خانوں سے اٹھتی تھی اسے یاد دلاتی، رزق میں خیانت کا سایہ سکون کو کھا جاتا ہے، امانت میں خیانت انسان کے باطن کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ سلیم دیر تک اینٹ کو ہاتھوں میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی بھی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں بچپن میں کہا کرتی تھی، بیٹا، دنیا کی سب سے بڑی دولت سچائی ہے، اگر کبھی آزمائش آئے تو سچ کا دامن نہ چھوڑنا۔ یادیں اس کے دل پر دستک دینے لگیں۔ سلیم نے ایک گہری سانس لی، تھیلی کو مضبوطی سے باندھا اور دوبارہ بازار کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، اے لوگو، کس کا مال گم ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے مگر کسی نے سنجیدگی سے نہ لیا۔ تب وہ سیدھا سوداگر کے خیمے کی طرف گیا اور ادب سے کہا، اے مالک، کیا تمہارا کوئی قیمتی سامان گم ہوا ہے؟ سوداگر، جو پہلے ہی اپنے خادموں پر برہم تھا، چونک کر بولا، ہاں، ایک تھیلی میں سونے کی اینٹ تھی جو کہیں گر گئی ہے، اگر نہ ملی تو میرا بڑا نقصان ہوگا۔ سلیم نے خاموشی سے تھیلی اس کے سامنے رکھ دی۔ خیمے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ سوداگر کی آنکھوں میں حیرت اور شک ایک ساتھ ابھرے۔ اس نے تھیلی کھولی اور سونے کی اینٹ کو دیکھ کر چہرہ کھل اٹھا۔ سوداگر بولا، تم نے اسے کیوں لوٹایا؟ تم تو اسے لے جا سکتے تھی۔ سلیم نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، میں نے کبھی اپنی ضرورت کو اپنی امانت سے بڑا نہیں سمجھا۔ اگر میں اسے رکھ لیتا تو شاید میرا جسم آسائش پا لیتا، مگر میرا دل ہمیشہ کے لیے بوجھ تلے دب جاتا۔ سوداگر اس جواب سے متاثر تو ہوا مگر اس کے دل میں دنیاوی حساب کتاب کی عادت تھی۔ اس نے سلیم کو چند درہم دینے چاہے مگر سلیم نے مسکرا کر انکار کر دیا اور کہا، اگر میں نے اسے انعام کے لیے لوٹایا ہوتا تو یہ سودا ہوتا، امانت نہیں۔ بازار کے لوگ اس منظر کے گواہ تھے۔
कुछ ने इसे सादा लौ कहा, कुछ ने नेक दिल। मगर सलीम के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे इसने अपने नफस की सबसे बड़ी ख्वाहिश को शिकस्त दे दी हो। मगर कहानी यहीं खत्म न हुई, क्योंकि तकदीर ने इस आजमाइश के बाद एक और मरहला इसके लिए लिख रखा था। सौदागर इस वाकये को भला ना सका। इसके दिल में एक सवाल मुसलसल गूंजता रहा, क्या वाकई दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो सोने की ईंट को ठुकरा कर सुकून को तरजीह देते हैं? और यही सवाल आने वाले दिनों में एक ऐसे वाकये का सबब बनने वाला था जो न सिर्फ सलीम की जिंदगी बल्कि बगदाद के लोगों के सोचने का अंदाज भी बदल देगा। क्योंकि कभी कभी एक सोने की ईंट महज धात का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि इंसान के बातिन का आईना बन जाती है, जिसमें इसका असल चेहरा साफ दिखाई देता है। सौदागर इस रात अपने खेमे में देर तक जागता रहा। इसके सामने वही सोने की ईंट रखी थी, जिसकी चमक अब इसे पहले जैसी मसरत नहीं दे रही थी, बल्कि एक सवाल की तरह इसकी आंखों में चुभ रही थी। वो सोचता रहा कि अगर वो फकीर चाहता तो इस ईंट को ले जाकर हमेशा के लिए अपनी गुर्बत मिटा सकता था, मगर उसने इसे लुटा दिया। क्या वाकई सुकून दिल दौलत से बड़ा होता है? इसी इस्तिराब में इसने अगली सुबह अपने खादिम को हुक्म दिया कि इस फकीर को तलाश करके मेरे पास लाया जाए। चुनांचे सलीम हस्ब मामूल मस्जिद के दरवाजे के पास बैठा था कि खादिम अदब से आकर इसे बुला लाया। सलीम के दिल में कोई खौफ ना था। वो खामोशी से सौदागर के खेमे तक गया। सौदागर ने इसका इस्तकबाल इस अंदाज में किया जो कल के रवैये से मुख्तलिफ था। इसकी आंखों में अब तकब्बुर की जगह तजस्सुस और एहतराम था। इसने सलीम को बैठने का इशारा किया और कहा, ए दरवेश, मैंने सारी रात सोचा कि तुमने वो ईंट क्यों लौटाई। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपने कारोबार में शरीक कर सकता हूं, तुम्हें अच्छी रहाइश, लिबास और इज्जत मिलेगी। सलीम ने इस पेशकश को सुना तो उसके दिल में हल्की सी हिचकिचाहट उभरी, क्योंकि ये पेशकश महज दिरहम और दीनार की नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी का दरवाजा थी। मगर इसने तहम्मुल से जवाब दिया, ए मालिक, मैंने ईंट इसलिए लौटाई कि वो मेरी ना थी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो इस नियत से रहूंगा कि मैं अपना हक कमाऊं, ना कि कल की अमानत के बदले कोई इनाम लूं। सौदागर ने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हें इनाम नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे किरदार पर एतमाद कर रहा हूं। मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जिसकी अमानत पर मैं अपनी दौलत से बढ़कर यकीन कर सकूं। ये सुनकर सलीम खामोश हो गया। इसने सोचा कि शायद यही वो रास्ता है जिसके जरिए वो अपनी मेहनत से रिस्क कमा सके। चुनांचे इसने शर्त रखी कि वो सिर्फ मेहनत के बदले उजरत लेगा और किसी इजाफी अतिये को कबूल ना करे। सौदागर ने इस शर्त को मान लिया और यूं सलीम उसके कारवान के साथ काम करने लगा। दिन गुजरते गए और सलीम की सादगी और दियानत ने काफिले के हर फर्द को मुतासिर किया। वो हिसाब किताब में निहायत साफ था, ना एक दिरहम कम करता ना ज्यादा। अगर किसी खरीदार से गलती से ज्यादा रकम मिल जाती तो फौरन वापस कर देता। इसकी यही आदत रफ्ता रफ्ता पूरे बाजार में मशहूर होने लगी। लोग कहते, अगर किसी सौदे में इत्मीनान चाहते हो तो सलीम के पास जाओ। सौदागर का कारोबार बढ़ने लगा, मगर उसके दिल में अब भी एक आजमाइश की चिंगारी बाकी थी। एक दिन इसने सोचा कि क्या सलीम की दियानत वक्ती है या मुस्तकिल। चुनांचे इसने खुफिया तौर पर एक थैली में कुछ सोने के सके रखवा दिए गोदाम के एक गोशे में और किसी को इत्तिला ना दी। चंद दिन बाद इसने ऐलान किया कि एक थैली गुम हो गई है। काफिले में हलचल मच गई, हर शख्स परेशान था। सलीम ने भी तलाश शुरू की। जब वो गोदाम के इस गोशे में पहुंचा तो उसकी नजर इस थैली पर पड़ी। इसने इसे उठाया। इसके दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद ये भी एक आजमाइश है, मगर इसने फौरन थैली सौदागर के पास पहुंचा दी और कहा, शायद ये वही अमानत है जिसकी तलाश है। सौदागर ने थैली खोली। सके पूरे थे। इसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी। इसने सबके सामने ऐलान किया, ये थैली मैंने खुद रखी थी। ताका जान सिक्कों के सलीम की दियानत वक्ती नहीं, बल्कि इसके मिजाज का हिस्सा है। इस ऐलान पर कुछ लोग शर्मिंदा हुए, क्योंकि उन्होंने दिल में सलीम पर शक किया था, मगर सलीम के चेहरे पर कोई गुरूर न आया। वो बस इतना बोला, अमानत की हिफाजत किसी के देखने आना देखने पर मौकूफ नहीं होती, ये दिल के निगहबान पर मुनहसिर है। इस दिन के बाद सौदागर ने सलीम को अपने कारोबार का निगरान बना दिया।
मगर सलीम की जिंदगी में तब्दीली के बावजूद उसके दिल की सादगी बरकरार रही। वो अब भी शाम को मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर शुक्र अदा करता और कहता, ए रब, तूने मुझे सोने की ईंट से ज्यादा कीमती चीज अता की, यानी आजमाइश में सुरखरू होने की तौफीक। वक्त के साथ साथ बगदाद में इसकी कहानी फैल गई। लोग अपने बच्चों को इसकी मिसाल देते कि देखो, असल दौलत किरदार है। एक दिन वही सोने की ईंट सौदागर ने बतौर तोहफा इसके सामने रखी और कहा, अब ये तुम्हारी है, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम इसे अपने दिल पर हावी नहीं होने दोगे। सलीम ने ईंट को देखा। इसकी चमक वैसी ही थी, मगर अब उसके दिल में कोई तूफान ना उठा। इसने निहायत सुकून से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ईंट को बाजार के मोहताजों में तकसीम करवा दूं, ताकि इसकी चमक सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई घरों को रोशन करे। सौदागर ने सर हिला दिया और यूं वो ईंट जो कभी एक फकीर की आजमाइश बनी थी, अब कई जरूरतमंदों के लिए सहारा बन गई। बगदाद की गलियों में इस वाकये का चर्चा हुआ, मगर सलीम के दिल में कोई फख्र ना आया। वो जानता था कि सोने की ईंट महज एक वसीला थी, असल इम्तिहान इंसान के नफस का था, और जो शख्स अपने नफस को काबू में कर ले, इसके लिए दुनिया की हर चमक मांद पड़ जाती है। मगर कहानी अभी अपने आखिरी सबक तक न पहुंची थी, क्योंकि असल तब्दीली न सिर्फ सलीम बल्कि इस सौदागर के अंदर भी जन्म ले चुकी थी, और आने वाले दिनों में यही तब्दीली एक ऐसे फैसले की सूरत इख्तियार करने वाली थी जो बगदाद के बाजार की फिजा को हमेशा के लिए बदल देगा। सौदागर के दिल में जो तब्दीली जन्म ले चुकी थी, वो अब महज एक एहसास न रही बल्कि एक अज़्म में ढलने लगी। इसने देखा कि जिस सोने की ईंट को वो अपनी दौलत की अलामत समझता था, वही ईंट जब मोहताजों में तकसीम हुई तो इसके कारोबार में बरकत कम ना हुई बल्कि अजब तरह का इत्मीनान बढ़ गया। इसने पहली बार महसूस किया कि दौलत जब तक मुट्ठी में कैद रहे बोझ बन जाती है, और जब हाथों से गुजर कर दूसरों तक पहुंचे तो रोशनी में बदल जाती है। चुनांचे इसने सलीम को अपने पास बुलाकर कहा, ए सलीम, मैंने जिंदगी भर तिजारत को सिर्फ मुनाफा के पैमाने से नापा, मगर तुमने मुझे सिखाया कि असल मुनाफा दिलों का एतमाद है। मैं चाहता हूं कि अब मेरा कारोबार सिर्फ सूद और जिया का खेल न रहे बल्कि अमानत और इंसाफ की मिसाल बन जाए। सलीम ने आजिज़ी से सर झुकाकर कहा, अगर नियत दुरुस्त हो तो हर बाजार इबादत का बन सकता है, बस शर्त यह है कि तराजू के पल्ले में सच रखा जाए। इसी दिन से सौदागर ने अपने तमाम कारिंदों को जमा किया और ऐलान किया कि आज के बाद कोई नापतोल में कमी न करेगा, किसी मुसाफिर से नाजायज कीमत ना ली जाएगी, और अगर कोई मोहताज आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाया जाएगा। इब्तिदा में कुछ लोगों को यह फैसला सख्त महसूस हुआ, क्योंकि वो पुराने तरीकों के आदी थे, मगर रफ्ता रफ्ता जब उन्होंने देखा कि ग्राहकों का एतमाद बढ़ रहा है और दूर दराज से लोग इसी काफिले से खरीदने आ रहे हैं, तो उनके दिल भी बदलने लगे। बगदाद के बाजार में ये बात फैल गई कि फलां सौदागर के यहाँ धोखा नहीं होता, और इस तब्दीली का सहरा सब सलीम के सर बांधते थे। मगर सलीम हर बार यही कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सोने की ईंट को इसकी असल जगह लौटाया था। असल सोना तो इंसान का किरदार है। एक दिन शाम के वक्त जब आसमान पर सुर्खी फैल रही थी और मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज गूंज रही थी, सलीम इसी दरवाजे पर बैठा था जहां कभी वो कासा रख कर बैठा करता था। मगर अब उसके पास कासा ना था बल्कि हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे। इसके चेहरे पर वही सुकून था, मगर आंखों में शुक्र की गहराई बढ़ गई थी। सौदागर भी इसके पास आ बैठा और धीरे से बोला, मैंने आज अपने दिल का बोझ हल्का होते देखा। पहले मैं हर सौदे के बाद अंदेशे में रहता था कि कहीं नुकसान ना हो जाए, मगर अब मैं हर सौदे के बाद दुआ करता हूं कि अल्लाह इसमें बरकत दे। सलीम ने मुस्करा कर कहा, जब दिल में खौफ खुदा आ जाए तो नुकसान का खौफ बाकी नहीं रहता, क्योंकि इंसान जान लेता है कि जो उसके लिए मुकद्दर है वो इसे मिलकर रहेगा। वक्त गुजरता गया और ये कहानी बगदाद के बच्चों की जुबान पर आने लगी। माँ बाप अपने बेटों को समझाते, देखो सोने की ईंट हाथ में आ जाए तो भी दिल को इसका गुलाम ना बनने दो, क्योंकि असल आजादी नफस की गुलामी से निकलने में है। एक दिन एक नौजवान शागिर्द ने सलीम से पूछा, अगर इस दिन आप ईंट रख लेते तो क्या होता? सलीम ने गहरी नजर से इसे देखा और कहा, शायद मेरा घर बन जाता, शायद मेरे कपड़े बदल जाते, मगर मेरा दिल हमेशा इस खौफ में जीता कि मैंने किसी की अमानत में खियानत की है। और याद रखो, जो सुकून सच्चाई देती है वो 1000 ईंटों से भी नहीं खरीदा जा सकता।
नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और उसने अहद किया कि वो भी हमेशा अमानत को मुकद्दम रखेगा। यूं एक फकीर और सोने की ईंट का वाकया महज एक किस्सा ना रहा बल्कि एक जिंदा सबक बन गया। सौदागर ने बाद में अपने मुनाफा का एक हिस्सा मुस्तकिल तौर पर गुरबा के लिए मुकर्रर कर दिया और उस काम की निगरानी सलीम के सुपुर्द की। मगर सलीम ने कभी अपने लिए कुछ ना रखा। वो कहता था, मैंने फक्र को छोड़ा नहीं बल्कि इसे इज्जत दी है, क्योंकि फक्र अगर सब्र के साथ हो तो इंसान को झुकाता नहीं बल्कि संवारता है। बगदाद की गलियों में अब जब भी कोई चमकती हुई चीज किसी की आंखों को खीरा करती, लोग मुस्करा कर कहते, याद रखो चमक धात में नहीं दिल में होनी चाहिए। और यही इस कहानी का हासिल था कि इंसान की असल आजमाइश इस वक्त होती है जब उसके सामने दुनिया की सबसे कीमती चीज रखी जाए और वो इसे छू कर भी अपने दिल को इसका असीर ना बनाए। सलीम की जिंदगी इसी पैगाम के साथ आगे बढ़ती रही। वो न कभी गुरूर में मुब्तला हुआ और न ही अपनी सादगी से हटा। और सौदागर जो कभी सिर्फ दौलत का पुजारी था, अब इंसाफ और अमानत का अलमबरदार बन चुका था। इस तरह एक सोने की ईंट ने दो दिलों को बदला और पूरे बाजार को एक नई रविश दिखाई। और जब बरसों बाद लोग इस वाकये को याद करते तो कहते, असल सोना वो नहीं था जो थैली में था, बल्कि वो था जो एक फकीर के दिल में चमक रहा था। यही इखलाकी सबक नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा। अमानत की हिफाजत इंसान को बुलंद करती है और हिर्स इसे गिरा देती है। और जो शख्स अपने नफ्स की ख्वाहिश पर काबू पा ले वही हकीकी मानों में अमीर है।